video of surface area and volumes. Today we will learn what happens if one shape is converted into another. So let's understand it. First, if you are recasting or melting one thing into another, then volume of shape 1 equals to volume of shape 2. This is the basic logic which we are going to use for exercise 13.3. Okay, let's start with question number 1, children. Exercise 13.3, question number 1. A metallic sphere of radius of the sphere is given as 4.2 centimeter, is melted and recasted into the shape of a cylinder. A radius of cylinder is 6 centimeter. The question says you have to find the height of the cylinder when one thing is recasted into another. So again, the logic is very clear. Volume of sphere will be equal to volume of cylinder. Now, that means 4 by 3 pi capital R cube is equal to pi R square H. Now, before putting all the values, here is the time saving trick. I want you to first cancel whatever is common. It can get, so pi gets cancelled, and now I want you to substitute the value. So 4 by 3 4.2 into 4.2 into 4.2 cube equals to pi square r square, that is 6 into 6 into h. So obviously h will be, there is no need to do any calculations first. Okay, just write down all the terms upon 6 and again this 6 will also go down. Now you calculate your answer, and again, since everything was in centimeter, height will also come in centimeter. Calculation now you people can do it. Please first simplify. ठीक है, ये 2 के 2 3s are 2 2s are 2 3s are again, right? Similarly 3 चेक करो, 42 क्या 3 के टेबल में जाता है? 3 1s are 3, 3 के टेबल में 12 जाता है, हाँ जाता है. तो 3 3 3 ये तीनों 4.2 4.2 4.2 कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 के साथ, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई एंड गेट योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. A metallic sphere of radius, okay, metallic spheres, there are three spheres now. So radius 1 is 6 centimeter, radius 2 is 8 centimeter, and radius 3 is 10 centimeter. Metallic spheres of radii this and this respectively are melted to form a single solid sphere, and find the radius of the resulting sphere. So let a radius of resulting sphere इक्वल्स टू कैपिटल आर, जो हमें फाइंड करना है. अगेन सारा कुछ सेंटीमीटर में है, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में आएगा. अगेन कैन आई से वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, जो तीनों को मिला के बनी है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 3. अब चेक करिए, 4 by 3 pi capital R cube is equal to 4 by 3 pi R1 cube plus 4 by 3 pi R2 cube plus 4 by 3 pi R3 cube. Again चेक करो, 4 by 3 pi पूरा कॉमन आ जाएगा, और अंदर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बचेगा, जिसको आपको सॉल्व करना आता ही है. अगेन टाइम मैंने कॉमन क्यों लिया, ताकि मैं ये कैंसिल करके यहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकूँ. और अब मेरा जो R होगा वो क्यूब रूट ऑफ जो भी अंदर आएगा सेंटीमीटर. दैट्स माय आंसर. नाउ हॉट्स, दिस इज अगेन अ हॉट्स क्वेश्चन. दिस एंड दिस, a 20-meter deep well, there's a well which is 20 meter deep.
यानी कि हाइट ऑफ द वेल गिवन है हमें। विद डायामीटर, बहुत क्लियरली नोट करिएगा, तो ये डायामीटर है यानी कि जो रेडियस है वो 7/2 मीटर हो जाएगा। इज a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread to form a platform। तो यहाँ से जितना भी मिट्टी निकला यानी कि वॉल्यूम, बेसिकली कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, उससे इन्होंने क्या किया, दे हैव इवनली स्प्रेड आउट इन अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने मिट्टी को डाल दिया, उसका लेंथ दे दिया है 22 मीटर्स, ब्रेथ दे दिया है 14 मीटर्स, और हमें हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म नहीं पता, तो वो निकालनी है। तो प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड and well was in the shape of a cylinder. So here in this question for volume of platform यानी कि cuboid equals to volume of cylinder. So length into breadth into height is equal to pi r square h. So put the values 22 into 14 into h हमें निकालना है। अब पाई क्योंकि कुछ नहीं गिवन, 22/7 ले लेते हैं, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट दैट इज 20। टेक दिस 20, सी h विल बी, अगेन कैंसिल आउट करो पहले, तो जो कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। अब आप उसे डिनोमिनेटर में 22/40, right? Now again you cancel it out and again your answer will come in meters क्योंकि सारे यूनिट मीटर्स में थे। That is question number 4 for you. Let's talk about question number, sorry, that was 3 for you. Now let's talk about question number 4. क्या speciality question? A well is again a well. Diameter again clearly note करना है, diameter है तो रेडियस 3/2 मीटर हो जाएगा, इज 14 मीटर डीप, सो हाइट इज 14 मीटर्स। इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू, सॉरी, द अर्थ टेकन out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring। अब उन्होंने क्या किया है, जो अर्थ यहाँ से निकली उससे एक सर्कुलर रिंग बना दिया है, राइट। और उसका चेक करिए, सर्कुलर रिंग का जो है इम्बैंक, बेसिकली इट इज़ अ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होती है, वो रीजन जो आपको, जब आप ऊपर से कभी किसी वेल को देखते हो, अगर आपने ओरिजिनल में वेल नहीं देखी, किसी मूवी में देखी होगी, तो जो हिस्सा हमें नेकेड आई से दिखता है, तो आपने देखा होगा कि वेल हमेशा जो है उसका एक बहुत चौड़ा सा वेल की तरफ एक छोटा सिलेंडर बना होता है, दैट इज नोन एज एम्बैंकमेंट बेसिकली, ठीक है। उसके जो इन्होंने बॉर्डर्स बनाए होते हैं मिट्टी से या ईंट लगा के, दैट इज एम्बैंकमेंट। और विड्थ ऑफ दिस एम्बैंकमेंट ये 4 दे दिए, 4 मीटर, सो 4 इज ऑल साइड्स, राइट। एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो हम इसको कैपिटल H ले लेते हैं, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं, राइट। और हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मतलब इस छोटी हाइट को हमें निकालना है, स्मॉल h को। सो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वेल जो है अर्थ डग इज पाई r square into h 14। डोंट पुट एनी वैल्यूज, आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकालोगे, चेक करिए। अगर मैं एम्बैंकमेंट को क्लियरली देखूं तो डोंट यू थिंक कि एम्बैंकमेंट जो है बड़ा सिलेंडर, एक बड़े वाले सिलेंडर से छोटा वाला सिलेंडर जब आप सबट्रैक्ट कर दोगे, ये हॉलो सिलेंडर जब आप सबट्रैक्ट कर दोगे ये वाला, तो आपके पास आउट वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज पाई कैपिटल R square H minus pi small r square H। अगेन पाई एंड H कॉमन अंदर रह गया, कैपिटल R square माइनस स्मॉल r square। अब स्मॉल r तो बेटा हमें गिवन था 3/2, कैपिटल R कैसे निकालेंगे, कैन आई से इट इज स्मॉल r प्लस जो विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट थी यानी कि 4,
So 3 by 2 plus 4, right children? So 3 plus 4 to 8 by 3 plus 8 by 2, so 11 by 2. तो check करिए. Now can I say, I'm erasing the figure, can I say volume of well, that is this is equal to pi h 11 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 by 2 का होल स्क्वायर. चेक करिए. अगेन पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया. अगेन अ टाइम सेविंग ट्रिक. चेक करो. रादर देन कैलकुलेटिंग the whole squares, can't I use algebraic identity a square minus b square here? Again you can save on time. That is a minus b into a plus b, right? So this is 3 by 2 का whole square into 14 equals to h. ये 3 में 11 में से 3 गया 8, राइट? 8 by 2 और 11 plus 3 14 by 2. चेक करिए, सॉल्व हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 3 into 3 into 14 upon 2 into 2 into 4 into 7 is equal to h. अगेन यूनिट आप क्लियरली देख सकते हो, मीटर्स ही आएगा. क्लियर? दैट्स अगेन अ हॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू. नेक्स्ट, question number 5. A container is shaped like a right circular cylinder. एक कंटेनर है सिलेंडर की शेप में. अगेन डायमीटर गिवन है, राइट? तो जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ यानी कि 6 हो जाएगा, और जो हाइट है वो गिवन है 15. इज फुल ऑफ आइसक्रीम. इसमें पूरे में आइसक्रीम भरी हुई है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट. इस आइसक्रीम को हमें कोन में ट्रांसफर करना है, और उस कोन की जो हाइट है वो उसने बोला 12 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 6 है. तो यानी कि रेडियस जो है वो 3 हो गया. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल टॉप, मतलब ये जो आइसक्रीम है वो इस कोन में ट्रांसफर हो गई, जिसके 2 पार्ट है, कोन भी है और एक हेमिस्फेयर भी है. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स. अब कैसे, हमें नहीं पता इस पूरे सिलेंडर में से कितनी कोन भरेगी, हमें ये निकालना है. So now look at the logic, children. Can I say volume of cylinder equals to n into volume of cone plus volume of hemisphere? क्योंकि हमें हेमिस्फेयर और कोन दोनों में ही, हेमिस्फेयर राइट, हेमिस्फेयर और कोन दोनों में ही आइसक्रीम को फिल करना है जो सिलेंडर से निकली है. सो वो इसमें भी फिल हो रही है, इसमें भी फिल हो रही है. सो नाउ, so again pi capital R square h is equal to n, कोन का वॉल्यूम 1 by 3 pi small r square h plus volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube. अब चेक करो, इसमें से भी पहले कॉमन ले सकते हैं. चेक करो, मैं 1 by 3 pi r square कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2h प्लस सॉरी h प्लस, यहाँ पे h बचा प्लस 2r बचा, राइट चिल्ड्रन? एंड यहाँ पे पाई कैपिटल R स्क्वायर h तो है. सो चेक करो, पाई और पाई अगेन कैंसिल, राइट? नाउ यू पुट द वैल्यू 6 into 6 into 15 अपॉन ये 3 उधर चला गया ऊपर, डिनोमिनेटर में स्मॉल r आ गया, यानी कि 3 into 3 ब्रैकेट में h स्मॉल h की वैल्यू जो कि 12 है प्लस 2 into r 3. पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा और फिर सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू आ जाएगी. दैट शुड बी अ होल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ कोन्स निकाल रहे हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, सेम लॉजिक से है ये. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स. अब जो कॉइन है, प्लीज ये गलती नहीं करनी है, कॉइन स्फेरिकल दिखता है लेकिन उसकी छोटा सा विड्थ भी होता है. दिस इज हाउ अ कॉइन इज, लाइक इट इज अ सिलेंडर, इट इज नॉट अ स्फेयर. वो दिखने में स्फेरिकल है क्योंकि उसकी थिकनेस है, वो 3D फिगर है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज अ
Please look into it very carefully. It's not a circle, it is a cylinder. So again diameter given है तो radius हो गया 1.75 by 2 सेंटीमीटर. अब इसमें चेक करिए एक और ट्रिक, यूनिट थिकनेस हो गई, यानी कि हाइट इज 2 मिलीमीटर. अगेन सब कुछ सेंटीमीटर में, तो 2 मिलीमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2/10. तो ये हो गया कॉइन, यानी कि सिलेंडर के सारे डायमेंशन. अब हमें आगे क्या गिवन है, इज मेल्टेड टू फॉर्म. अच्छा, कितने कॉइन्स हैं जो इस क्यूबॉइड से बने हैं. सो अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, यानी कि सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन, सारे यूनिट्स गिवन है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इक्वल्स टू n इंटू पाई r स्क्वायर h. पुट ऑल द वैल्यूज. अब इसमें आपको पाई भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जनरली पाई कैंसिल हो रहा था, लेकिन यहाँ नहीं होगा. सो यू कैन यूज पाई एज 22/7, और यू कैन ऑल्सो यूज इट एज, क्योंकि 3.5 था तो 22/7 यूज करोगे तो आसान रहेगा. You can also use it as 3.14. So that is how you will get n. So n is equal to 5.5 into 10 into 3.5 upon pi, that is 22/7 into r square. R square is 1.75 upon 2 का whole square into h. h is 2/10. Now you can get your answer. Question number 7. A cylindrical bucket 32, again bucket है सिलेंडर की शेप में. क्या गिवन है वो चेक कर लेते हैं. ओके 32 मीटर हाई, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है एंड रेडियस ऑफ द बेस गिवन है. is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap is formed. इसमें से जितनी भी सैंड हम निकली, एक कोनिकल हीप ऐसे करके एक कोनिकल हीप फाइन बन गई, एंड हाइट ऑफ द कोन इज गिवन टू यू एज 24 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द रेडियस, स्मॉल आर ले लेते हैं ऐसे, रेडियस, एंड ऑल्सो फाइंड द स्लैंट हाइट एल. तो पहले तो आर कैसे आएगा, ऑब्वियसली सेम लॉजिक, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की जो सैंड निकली है वही कोन में कन्वर्ट हुई है. सो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच. अगेन पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन एच, यानी कि 24. ये आर स्क्वायर आ गया, राइट. अब चेक करो, आर जो है वो अंडर रूट ऑफ दिस आएगा, तो 18 तो ऑलरेडी रूट से बाहर आके 18 इंटू 18 है, 18 का स्क्वायर, वो ऑलरेडी रूट से बाहर आ जाएगा. आप सिर्फ 24 और 32 को कैंसिल करिए, राइट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो अगर मैं कैंसिल करूँ, सो आप दोनों जो है वो 4 के टेबल में जाते हैं, चेक कर ली. ओके 2 से 12, 2 12 2 1 2 6, again 2 6 2 8, right. Similarly 2 3 2 4. अब ये भी बाहर चला गया, so R is 18 इंटू 2, 4 जो है वो रूट से बाहर, अपॉन यहाँ पे 3 था. अब चेक करिए कोई गलती तो नहीं है, ये जो 3 है ये छूट गया, ये इंटू 3 भी ऊपर आना था, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए. सो आर की वैल्यू जो है वो 18 इंटू 2, यानी कि 36 सेंटीमीटर आ गई. सो प्लीज इंश्योर कि ऐसी गलतियाँ ना हो. डोंट एवर फॉरगेट अ डिजिट. इफ यू आर गेटिंग अ लिटिल, जैसे मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पे तो प्रॉपर आंसर आना चाहिए था और वो नहीं आया, तो मैंने एक बार को बैक कैलकुलेशन करके देख लिया कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है, एंड आई कुड क्विकली फाइंड आउट माई मिस्टेक कि ये जो 3 था ये भी उधर जाना था, राइट. ओके, सो आर आ गया. नाउ एल का फॉर्मूला आपको आता ही है, एल इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यूज द फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट ऑल्सो. Question number 8 is again a HOTS question.
चेक करते हैं. What is to think about in this question? Water in a canal this meter d wide. एक कैनल मीन्स एक ऐसे करके क्यूबॉइड है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, राइट? 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep. So height and breadth given है. वाटर इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है at the speed of, now speed of water is 10 kilometer per hour. First let me tell you what is it signifying. Can I say this means in 1 hour length of the canal which is getting empty is 10 kilometers बेटा, है ना? यहाँ से पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इसका अगर मैं नॉर्मल इंटरप्रिटेशन करूँ तो यही होगा कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर लेंथ खाली हो जाती है. और किलोमीटर को अगेन मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इन 2000, क्योंकि सब कुछ मीटर्स में दिख रहा था. अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स. सो इन 30 मिनट्स यानी कि कैन आई से हाफ एन आवर, कितनी लेंथ होगी, दिस डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5000 मीटर्स, इतना पानी बहेगा. नाउ द क्वेश्चन सेज हाउ मच एरिया डज इट इरिगेट इफ द हाइट, if 8 centimeter of water is standing. Now the height of the field, इसको मैं कैपिटल H 8 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए. जहां सेंटीमीटर है, जहां किलोमीटर है, बाकी कुछ मीटर्स में था, कुछ सेंटीमीटर में था, ऑल यूनिट्स हैव टू बी सेम. सो कैन आई से वॉल्यूम ऑफ कैनल in half an hour equals to volume of field. Now कैनल की जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू फील्ड की वॉल्यूम को कैन आई से, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, एरिया इनटू हाइट होगा. तो चेक करिए, लेंथ हमने निकाली 5000 क्योंकि आधे घंटे के लिए ही निकालनी थी. ब्रेथ 6, हाइट 1.5 इज इक्वल टू एरिया इनटू एच. एच इज 8 सेंटीमीटर जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो मेरे पास एरिया आ गया 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 अपॉन 8. अब यूनिट क्या आएगा, आई होप क्लियर है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सबको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड अगेन अ हॉट्स क्वेश्चन. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank. एक टैंक में, सिलेंड्रिकल टैंक में एक पाइप के थ्रू पानी गिर रहा है. ओके, इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप गिवन है. सो कैन आई से रेडियस ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर और ये टैंक है. विच इज, टैंक का हमें रेडियस भी गिवन, डायमीटर गिवन है 10 मीटर, तो रेडियस जो है वो हो जाएगा 5 मीटर. एंड डेप्थ यानी कि हाइट इज 2 मीटर. अब if the water is flowing, water flows, again speed of water from the pipe is 3 kilometer per hour. Again same interpretation. In 1 hour, can I say height of pipe, pipes क्या है, सिलेंडर, इक्वल्स टू 3 किलोमीटर. अगेन यूनिट चेक करिए, सब कुछ अलग अलग है.
किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 1000 इतने मीटर्स आ गए। इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं 1/10 meters, right? Now the question says how much time the water will be filled. ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन कि कितना टाइम लगेगा फिल होने में। तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। कैन आई कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ टैंक विच इज अ सिलेंडर, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, सो यानी कि पाई 5 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 2। तो चेक करो 50 पाई आ गया। अगेन पाई की वैल्यू मत पुट करिएगा, आई विल टेल यू द रीजन वाई। मीटर क्यूब। सिमिलरली चेक निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप यानी कि वाटर जो 1 घंटे में था इन 1 आवर, वो क्या होगा? अगेन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, सो पाई स्मॉल आर कितना है 1/10 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना था 3000। जरा निकालें इसे, क्या आएगा? पाई 1/100 इंटू 3000 यानी कि कितना आ गया 30 पाई मीटर क्यूब। अब चेक करो यूनिटरी में, अब यहां पे है लॉजिक। 30 पाई मीटर क्यूब जो है वो 1 घंटे में भरता है यूनिटरी मेथड। 1 मीटर क्यूब कितने देर में भरेगा? 1/30 पाई आवर्स। और हमें कितना निकालना था? 50 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि हमारा जो टैंक की वॉल्यूम है वो 50 पाई थी। वो कितने में भरेगा? 1/30 पाई इंटू 50 पाई आवर्स। तो पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर आया 5/3 hours. And if you want you can convert it into minutes and seconds, that is not a problem. But I hope you will understand कि इसमें क्या हॉट्स था। इसमें यूनिटरी मेथड लगना था और इसमें टाइम सेविंग ट्रिक ये थी कि मैंने पाई को पाई रखा। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया था कि दोनों ही सिलेंडर हैं, तो दोनों में पाई यूज होगा, तो जो पाई हमेशा कैंसिल आउट होगा। सो ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। ओके, so this is all about surface area and volumes. If you have, the next exercise is not in your syllabus, that is frustum, but still if you have any doubt from this exercise, conversion of one shape into another, you can let me know in the comments below. Stay tuned for the tricks and shortcuts and time saving techniques of the chapters. Since now your syllabus is over for term 2, I'll be posting few of the tricks and the shortcuts video and the HOTS question. Okay children, so thank you.